खबरें विस्तार से। बल्लभपुर पेपर मिल कारखाना तो खुल गया है, लेकिन अभी तक श्रमिकों के वेतन नहीं दिए गए हैं। एक बार फिर वेतन की मांग पर सीटू की तरफ से गेट के बाहर सभा की गई। इस दौरान श्रमिक नेता रुनु दत्ता ने कहा कि अगर लॉकडाउन के दौरान जो बकाया वेतन है उसे नहीं दिया गया तो सभी यूनियन एक साथ मिलकर श्रमिकों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को पूरा वेतन देना होगा। इस मांग के साथ रविवार बल्लभपुर पेपर मिल गेट के सामने पेपर मिल मजदूर यूनियन सीटू की विरोध सभा की गई। इस सभा में रानीगंज के पूर्व विधायक और श्रमिक नेता रुनु दत्ता, हेमंत प्रभाकर, शाश्वती मित्र, कमलाकांत पाले मुख्य रूप से उपस्थित थे। बता दें कि 20 मई को मिल प्रबंधन की तरफ से वर्क ऑफ सस्पेंशन का नोटिस लटका दिया गया था, जिसके बाद से मजदूरों के लिए हक की लड़ाई सीटू लड़ रही है। सीटू की तरफ से हो रहे लगातार आंदोलन को देखकर 4 जून को तृणमूल श्रमिक यूनियन सीटू और मिल प्रबंधन की तरफ से बैठक की गई। इस दौरान मिल खोलने पर सहमति हुई। 3 दिन पहले मिल खोल भी दिया गया है। सीटू की तरफ से लॉकडाउन के दौरान मिल प्रबंधन से वेतन की मांग की जा रही है। सीटू की तरफ से इस महामारी के दौरान मिल में काम करने वाले श्रमिकों को प्रबंधन की तरफ से निःशुल्क टीकाकरण की मांग की गई है। इस दौरान श्रमिक नेता रुनु दत्ता ने कहा कि अगर पेपर मिल प्रबंधन हमारी मांगे नहीं मानती है तो सभी यूनियन एक साथ मिलकर श्रमिकों की हक के लिए बृहत्तम आंदोलन करेगी। इसके साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा की भी मांग की गई। पेपर मिलेर CITU ইউনিয়ন এই যে কারখানা লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে খুব শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে এবং আমাদের যে দাবি যা এখনো পূরণ হয়নি সেই লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা আজকে মিটিংটা ডেকেছি। আমরা সে অস্বীকার করিনি, আমরা বলতে চাইছি আইএনটিটিউসির বর্তমান যারা নেতৃত্ব তারা হচ্ছে যৌথ আন্দোলনে বিশ্বাস করে এবং আমাদের সাথে তারা সাথ দিয়েছে। আমরা যৌথভাবে এই লড়াই জিতেছি। আমরা একা নয়, যৌথভাবে লড়াই করব এবং আগামী দিনের যে পাওনা গন্ডা আছে আমরা সেটা করব। আমরা মূলত লকডাউনের সময় বা বন্ধের সময় শ্রমিকদের যে বেতন যে 20 দিন 22 দিন বন্ধ ছিল তার সমস্যা আমরা জানতে চাইছি। কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেছে, এগ্রিমেন্টে বলেছে, পরে আলোচনার ভেতর দিয়ে আমরা জানাবো। আমরা বলেছি সরকার পশ্চিমবাংলা সরকার, যে সরকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধিতা আছে, তবুও সরকার যা বলবে আমরা সেটা মানব। সরকার যদি পয়সা দেয় আমরা পয়সা নেব, আর যদি না দেয় আমরা সেটা মেনে নেব। এটা যেমন আমাদের দাবি, তেমনি হচ্ছে অবিলম্বে এই দাবিকে পূরণ করার জন্য ম্যানেজমেন্টকে চাপ দেওয়া, তারা তাড়াতাড়ি হচ্ছে আলোচনার ভেতর দিয়ে একটা সমাধান। দ্বিতীয়ত দীর্ঘদিন ধরে এগ্রিমেন্টটা বাকি আছে, দীর্ঘদিন 25 থেকে 28 মাস বা 3 বছরের কাছাকাছি শ্রমিকরা কোনো বেতন চুক্তি হয়নি। 3 বছর আগে যা চুক্তি হচ্ছে সেই টাকা তারা পাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়েছে, সব কিছুর দাম বেড়েছে, পেট্রোল ডিজেল সহ সব জিনিস বেড়েছে। আমরা তার জন্য লড়াই করছি। পেট্রোল ডিজেলের জন্য আমরা হচ্ছে যে আমাদের CITU আমরা গোটা ভারতবর্ষে হচ্ছে 23 তারিখে আমরা বিক্ষোভ পেট্রোল পাম্পের সামনে করব। যেখানে পেট্রোল পাম্প আছে সেখানে আমরা পেট্রোল পাম্পের সামনে বিক্ষোভ করব, যেখানে নেই সেখানে এমনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করব। আমরা বিক্ষোভ করব। আমরা মূল্যবৃদ্ধি, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, অসম্ভব জিনিসপত্রের দাম। আমরা সরকারকে বলছি অন্তত 7,500 করে 6 মাস তোমাকে দিতে হবে। 7,500 করে যারা রোজগার করেন না, যারা ট্যাক্স দেন না, তাদের 7,500 করে দিতে হবে। এই দাবিতে আমরা হচ্ছে 26 তারিখে রানীগঞ্জে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আমরা চিৎকার করবো। এটা গোটা পশ্চিমবাংলায় করা হবে। আমরা যেমন কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে যৌথ আন্দোলন করতে চাই, তেমনি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে CITU আমরা আবার আমাদের যে রাজনৈতিক লড়াই আছে, যা দাবি দাওয়া আছে, মানুষের জন্য যা করার আছে আমরা সেটা আমরা অবিলম্বে ভ্যাকসিন দিতে বলছি, যে আরও সেন্টার বাড়াতে হবে, আরও বেশি মানুষকে দিতে হবে। সামনে যে বিপদ থার্ড স্টেজ আসছে তাকে যদি আটকাতে হয়
তাহলে আরও হসপিটাল এবং আরও চিকিৎসার উন্নতি এবং তার সঙ্গে ভ্যাকসিন সেন্টারগুলো বাড়াতে হবে। আমরা বলছি কোম্পানিকে দায়িত্ব নিতে হবে, তার ওয়ার্কার, তার বদলি ওয়ার্কার, তার কন্ট্রাক্টরদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কিনে এনে সেগুলো বিনা পয়সায় শ্রমিকদের দিতে হবে। অনেক জায়গায় কারখানায় সেগুলো শুরু হয়ে গেছে। আমরা বলছি দেরি করবেন না, মানুষের জীবন নিয়ে হচ্ছে যে খেলা করবেন না, আপনারা অবিলম্বে দেন। আমরা এই সব দাবি নিয়ে আজকে এখানে হচ্ছে যে আমরা গেট মিটিং করেছি, শ্রমিকদের কাছে সব কথা বলেছি। আমরা শ্রমিকদের সমর্থন চাইছি, আমরা ঝান্ডা দেখতে চাইছি না, সমস্ত শ্রমিকরা এক হোক, তাতে মুভমেন্ট যদি বাড়াতে হয় তাতে আমরা রাজি আছি এবং হচ্ছে যে আমরা সেই দিকেই যাব। আমরা এই লড়াইয়ে বিশেষ করে বেতন চুক্তি, ভ্যাকসিন, বকেয়া বেতন আমরা আদায় করেই ছাড়বো। যদি আমরা যৌথ মুভমেন্ট করি তাহলে 100% আমরা জিতব, এই কথাই আজকে আমরা এখানে বলছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री ने एक और उदारता दिखलाते हुए यौन कर्मियों के टीकाकरण देने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। रविवार आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने इस टीकाकरण योजना की शुरुआत की, जिसके तहत लक्ष्मीपुर दिशा जन कल्याण केंद्र इलाके में यौन कर्मियों को टीका दिया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर को प्रमुखता देने के साथ ही सब्जी विक्रेता, बस कर्मियों को मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी थी। इसके बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक और उदारता दिखाते हुए यौन कर्मियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का आदेश दे दी है, जिसके तहत आज से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। आसनसोल कुल्टी विधानसभा अंतर्गत लक्ष्मीपुर दिशा जन कल्याण केंद्र में आज यानी रविवार से आसनसोल नगर निगम की तरफ से यौन कर्मियों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ निःशुल्क वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्रशासक सदस्य अभिजीत घटक, मीर हासिम, नगर निगम के डॉक्टर के अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अजय ठाकुर सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर ने जन कल्याण केंद्र इलाके का दौरा भी किया। नहीं এখানে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চলছে, স্পেশালি এখানকার লোক আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। আর ভ্যাকসিন ক্যাম্প এখানেই বানানো হচ্ছে, যাতে ম্যাক্সিমাম লোক বেনিফিটেড হয় এখানকার। সেখানে আমাদের বোর্ডের মেম্বাররা আমরা ঠিক করি যে এই দিশা অঞ্চলে মানুষদের আমরা এই ভ্যাকসিনের টিকাকরণ করব। তো সেই মতো আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের এখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মেডিকেল টিম এসেছে, আমাদের মেম্বার অভিজিৎ ঘটক এসছেন, আমাদের মেম্বার মীর হাসিম এসছে, আমাদের আধিকারিক আমাদের বীরেন অধিকারী এসছেন, যাতে এনারা যাতে সুস্থ থাকেন সেটাই আমাদের ভাবনা চিন্তা। সবাই কি ভ্যাকসিন নিচ্ছে? হ্যাঁ, সবাই মোটামুটি ভ্যাকসিন নিচ্ছে। ভ্যাকসিন দিতে আগ্রহী এই কারণের জন্য সবাই চাইছে যে এই রোগটা পৃথিবী থেকে নিপাত যাক। এবং আমরা আরেকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে এই অঞ্চলের অনেক মানুষের যাদের আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড নেই, অথচ পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করেছেন ইলেকশনের আগে যে প্রত্যেক মহিলাকে 500 টাকা এবং শিডিউল কাস্ট হলে 1000 টাকা দেবেন। তো সেই ব্যাপারে আমরা অভিজিৎ ঘটক রয়েছে, ওনাকে স্পেসিফিক্যালি দায়িত্ব দিয়েছি আমরা যে মীর হাসিনকে নিয়ে যে আমাদের ব্যাংক অফ বরোদার মাধ্যমে আমরা এই মহিলাদের এই অ্যাকাউন্টগুলো যাতে খুলে দেয়, এবং আমাদের তাতে ম্যানেজাররা সম্মতি দিয়েছেন যে ওনারা ক্যাম্প করে এখানে করে দেবেন। এটা সত্তর হয়ে গেলে আমার মনে হয় এই অঞ্চলের মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शुक्रवार आसनसोल के रेलपा नया मोहल्ला निवासी इफ्तिकार आलम ने इकबालपुर से पानी में नहाने के लिए छलांग लगाई थी, लेकिन वो तेज बहाव में डूब गया और उसकी मौत हो गई। रविवार AIMIM पश्चिम बर्धमान जिला के सदस्य पीड़ित परिवार वालों के पास पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिए और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिए। आसनसोल के रेलपा नया मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद इफ्तिकार आलम ने शुक्रवार नदी में तैरने के लिए इकबालपुर से छलांग लगा थी। उसके बाद वो पानी के तेज बहाव में डूब गया, जिसके बाद आपदा प्रबंधन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, नदी में उतरकर उसकी तलाशी शुरू की। काफी खोजबीन करने के बाद शनिवार सुबह उसका शव काली पहाड़ी ब्रिज के पास से बरामद किया गया।
रविवार इन पीड़ित परिवारों के पास AIMIM के पश्चिम बर्धमान जिला सदस्य पहुंचे। इन लोगों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही ADDA, आसनसोल नगर निगम और पश्चिम बंगाल सरकार से भी मदद करने की गुहार लगाई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PB। अब जाते हैं खबरों। यास तूफान से तबाह हुए सुंदरवन क्षेत्र में राहत पहुंचाने का कार्य फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया।
रविवार को रानीगंज के बांसवाड़ा संस्था कार्यालय में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के माध्यम से अनाज भेजने का प्रबंध किया गया। याश तूफान से तबाह हुए सुंदरवन क्षेत्र में राहत पहुंचाने का कार्य फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। रविवार को रानीगंज के बांसवाड़ा संस्था कार्यालय में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के माध्यम से अनाज भेजने का प्रबंध किया गया। मंत्री मलय घटक ने कहा कि चक्रवात तूफान यास ने राज्य में भीषण तबाही मचाई है। माननीय मुख्यमंत्री की अपील के बाद राज्य के विभिन्न संगठनों ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अनाज भेजने का जो बीड़ा उठाया गया है, उसके लिए उन्होंने संस्था के सदस्यों को धन्यवाद दिया। वहीं संस्था के अध्यक्ष राजेश प्रसाद खैतान ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर मदद के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। संस्था के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर एवं योगदान देते हैं। उन्होंने मंत्री मलय घटक से अनुरोध किया कि उनके माध्यम से सुंदरवन में बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज भेजा जा रहा है एवं दूसरा खेप का अनाज सोमवार 21 जून को पश्चिम बर्धमान के जिला शासक के माध्यम से भेजा जाएगा। इस राहत सामग्री में 800 तिरपाल, इसके अलावा 50 बोरा चावल, 50 बोरा आटा एवं 50 बोरा चूड़ा बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा जा रहा है। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर आसनसोल के धानुकुड़ी नामक एक बड़े गांव को गोद लिया गया है। वहीं इस मौके पर संस्था के सचिव सचिन रॉय ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पांडवेश्वर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्यामा पादो भट्टाचार्य, उखड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज शराफ, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, पवन गुडगुटिया, ओम प्रकाश बाजोड़िया, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, सचिव अरुण भारतीय, रूबी गढ़वाल, ओम प्रकाश बाजोड़िया, जुगल प्रसाद गुप्ता, रोहित खैतान, राजू कयाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमने उनसे अनुरोध किया है, हमारे सुभाष बाबू ने भी किया है, मैंने भी किया है, अजय ने भी किया है, सब हम लोग अनुरोध किए हैं। एक बार हम लोग को आप सुंदरवन लेके चलिए, हम लोग दुर्गति है तो हम लोग इसके विषय में कुछ सोचेंगे। अभी इसी जो मैंने आपको धनुडी हम लोगों ने फौजबेकी की तरफ से बोले वो आपने सुन में আমরা অ্যাডপ্ট করেছি ওই গ্রামটা ইনস্ট্যান্ট করছেন আর সেটা ওনাকে ডিএম সাহেবকে পরশু হয়েছে নজর কালকেও ইচ্ছা করবো তারা কারণ ডিএম সাহেব বলেছেন আপনারা যদি 4টা ঘরও অ্যাডপ্ট করেন তাহলে আমরা আনন্দিত আপনারা যদি একটা रोड अडॉप्ट करें इस काम में आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग मलय बाबू को आश्वासन देते हैं कि हमारे इलाके के जितने चैम्बर्स हैं वो सब कुछ न कुछ कार्य करेंगे और अवश्य करेंगे। दूसरा जो उनका ममता बनर्जी का जो आवेदन था, जो अपील थी, वो थी कि कुछ आप रिलीफ मटेरियल दीजिए। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग 800 तिरपाल और 50 बोरा करके आटा, चूड़ा और चावल ये हम लोग सुंदरबन और गंगा सागर इलाके के लिए देंगे। हमरा में वेस्ट बंगाल फर्स्ट, और ये तो हम लोग नहीं बोल रहा, ये तो ऑल इंडिया का जो कमेटी है वो लोग बोल रहा कि वेस्ट बंगाल इज फर्स्ट इन वैक्सीनेशन। तो उन्होंने बोला हम लोग कुछ वैक्सीनेशन करने चाहते हैं। हम बोला ठीक है कराइए, उसके लिए भी हम लोग मौजूद हैं। आप लोग का जितना ट्रेड से कॉमर्स से जुड़े हुए हैं एक दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाइए, सब तरह का जो मदद है हम लोग करेंगे। वैक्सीनेशन जिसका भी नहीं हुआ उसका वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन प्लस तो अभी अलाउ है। तो पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, ये सरकार पर आप लोग भरोसा रखिए, कोई भी काम होगा हम लोग को भी बताइए। अगर आपका काम नहीं हुआ तब आप लोग बोलिए, हम लोग तो तुरंत जब भी सुनते हैं खैतान जी तो तुरंत मदद करने का कोशिश करते हैं। जो होने वाला काम है वो जरूर होगा, इतना तो हम आपको यहाँ पर एकदम वादा कर देगा। यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा भाषी का आदमी रहते हैं। और ममता बनर्जी एक ऐसा लीडर है कि सभी का लीडर है। आप 2011 में चीफ मिनिस्टर बनने का बाद खास करके हम लोग का जिला में जो भी प्रॉब्लम था, आप अगर एजुकेशन में देखिएगा तो हम लोग का यहाँ का लड़का बच्चा लोग को MA, MSc, MCom पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी बना दिया, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी जो लोग हैं वो लोग को आफ्टर स्कूल पास करने के बाद झारखंड, बिहार में जाने पड़ता था ग्रेजुएशन के लिए।
उन्होंने हिंदी कॉलेज बनाया। और हिंदी कॉलेज खाली नहीं, बंगाल में हिंदी यूनिवर्सिटी बना, जिसका एक ब्रांच आसनसोल में भी बनेगा। ये हम लोग का चीफ मिनिस्टर ऐलान किया। अगला कुछ दिन में यहाँ हिंदी यूनिवर्सिटी भी बन जाएगा। तो हिंदी सेंट जोसेफ स्कूल में वो कॉलेज चलता है। और करीब हम लोग 4 एकड़ जमीन उन लोग को दिया है कोल्हानपुर हाउसिंग का तरफ। उन लोग का बिल्डिंग बनने से सेंट जेवियर्स कॉलेज भी बनेगा, जो इंग्लिश मीडियम है। फैसिलिटी हॉस्पिटल बना, जो आसनसोल में एक सब डिविजन हॉस्पिटल था, आप लोग जानते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तरक्की किया गया था। उसके बाद वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, सरकारी तौर से फ्री ट्रीटमेंट। মাননীয় শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের একটা ওয়েবিনার করেছিলেন ব্যবসায়িক সংগঠনদের সাথে। তাতে উনি বলেছিলেন যে একটা করে আপনারা চেম্বার অফ কমার্স গ্রাম অ্যাডপ্ট করুন, আর আমাকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী দেন, নগদ দেন বা সামগ্রী দেন। তাতে সাড়া দিয়ে আমরা মোটামুটি ৬-৭ লাখ টাকা ত্রাণ সামগ্রী, ৮০০খানা তিরপাল, ৫০ বস্তা করে চিড়ে, চাল এবং আটা, এটা আমরা আজকে আমাদের এই এলাকার বিশিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় শ্রদ্ধেয় শ্রী মলয় ঘটক, MIC ল অ্যান্ড জাস্টিস অ্যান্ড PWD, তার হাতে আমরা জিনিসপত্রগুলো অর্ধেক তুলে দিয়েছি। অর্ধেক সামগ্রী আমরা কালকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার অফ পুলিশ, ADM, 2টো SDO, এরা সবাই থাকবেন। তাদের হাতে আমরা এক গাড়ি ওদের হাতে তুলে দেবো, এক গাড়ি এদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এরা জিনিসপত্রগুলো সব সুন্দরবন আর ওই গঙ্গাসাগর এলাকায় পাঠাবেন, যেখানে খুব বিশেষ অসুবিধা আছে, খুব আর্ত মানুষ, তাদের স্বার্থে আমরা কিছু জিনিস পাঠালাম। একটা কাঠবিড়ালির মতন আমরা আমাদের উদ্যোগ করেছি, যতটুকু কাজে লাগবে। এখন আরেকজন MLA এসেছিলেন এই সভায়, শ্রদ্ধেয় শ্রী হরিরাম সিং, জামুরিয়ার MLA, তিনিও কিছু বলছেন আরও ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার জন্য, সেটাও আমরা অবশ্যই দেবো। ধনুটি গ্রামটা অ্যাডপ্ট করেছি আমরা ফসবিগির তরফ থেকে, সবচেয়ে বড় গ্রাম আমরা ওটাই অ্যাডপ্ট করেছি, কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন, স্বাভাবিক আমাদের তো মহাসংগঠন, এই জন্যে আমরা বড়টা অ্যাডপ্ট করেছি গ্রামটা। তো সেই হিসাবেই আমরা জিনিসপত্র দিয়ে যাচ্ছি, আরও আগামী দিনে দেবো। আরও যদি অ্যাপিল করা হয় আমাদেরকে, আমরা কিন্তু কোনোদিন পিছপা করি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। कांगसा वित्त विहार के शिवपुरा जय नदी घाट पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे इलाके के पूर्व विधानसभा विधायक प्रदीप मजूमदार एवं इलाके के लोगों की समस्या सुनी और उनसे बातचीत भी की और उनके समस्या को हल करने का आश्वासन भी दिया। कांगसा वित्त विहार के शिवपुर अजय नदी घाट पर पूर्व विधानसभा के विधायक प्रदीप मजूमदार पहुंचे। रविवार सुबह अजय नदी घाट का प्रदर्शन करने के साथ पासवर्ती इलाकों के भी उन्होंने घूम कर देखा और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को भी सुना। यह आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से अजय नदी में पानी का स्तर बढ़ने से अस्थायी ब्रिज टूट गई थी। उसके बाद फिर से लोगों ने बांस का पुल बनाया था पार करने के लिए, वह भी पानी की तेज बहाव में बह गया था, जिसमें 2 लोग गाड़ी लेकर पार कर रहे थे, वह भी पानी में बाइक लेकर गिर गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बचा लिया गया, मगर बाइक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं कुनूर नदी पर बनाए गए ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, नतीजा लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उस जगह को भी उन्होंने घूम कर देखा और कहा कि प्रशासन की तरफ से नजरदारी की जा रही है। कांगसा ब्लॉक के अधिकारियों को कहा कि इलाके के लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा, जो भी असुविधा होगी उसे हल करना होगा। दुर्गापुर पूर्व के विधायक इसके बाद आदिवासी पाड़ा गए, जहां दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से गरीब परिवार के लोगों में खाद्य सामग्री वितरित की गई। विधायक प्रदीप मजूमदार ने बताया कि चुनाव के दौरान उस गांव में वे गए थे, जहां आदिवासी महिलाओं ने कहा था कि चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद नहीं आते, मगर प्रदीप मजूमदार ने कहा कि हम अभी तक 3 बार आ चुके हैं, उन लोगों की समस्याओं को देखा है, सुना है, उस पर काम चल रहा है। एक आदिवासी महिला ने कहा कि हमें विधायक को देखकर खुशी हुई कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसके पहले भी विधायक जीत कर गए थे, मगर किसी ने भी हम लोगों के दुख दर्द को नहीं सुना और न ही इलाके में काम किया, मगर प्रदीप मजूमदार ने जो बात कही उसे पूरा किया। নবগ্রামের এন্ডে এই যে আমাদের অজয় নদীর ওপরে যে পার্মানেন্ট ব্রিজের অনুমোদন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তার কাজের কতটা প্রোগ্রেস হয়েছে সেটা দেখতেলাম। বিশেষ করে আপনারা জানেন যে অস্থায়ী যে চড়া এখানে পারাপারের যে ব্যবস্থা থাকে সেটা প্রতি বর্ষায় ভেঙে যায়
এবারেও প্রবল বর্ষণের ফলে তা ভেঙে গেছে। সেইটা দেখে কিন্তু এর সমাধান হচ্ছে এই সেতু, যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন এবং ঘোষণাও করে দিয়েছেন। তার কাজ হচ্ছে। এইদিকে একটু জমি সংক্রান্ত সমস্যা থাকায়, জটিলতা থাকায় এদিকটায় দেরি হচ্ছিল। তো সেটাও এখানকার যিনি যারা পঞ্চায়েত সমিতিতে আছেন, আমাদের পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রবোধ মুখার্জির সঙ্গে আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিখিল ডোম মহাশয়ও আছেন এখানে। ওনারা সচেষ্ট হয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বিডিও অনির্বাণ ভট্টাচার্য মহাশয়, এসডিও সবাই মিলে খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করেছেন। ওদের একটু বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেই কাজটার অগ্রগতি অনেকটা ত্বরান্বিত হবে। সেইটি দেখার জন্য এসেছিলাম যে চাক্ষুষ দেখে কী কী অসুবিধা আছে, যাতে কাজটার আর দেরি না হয়, আমরা সেদিকে সচেষ্ট থাকব। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। नहीं रहे सीएन टीवी चैनल दुर्गापुर के रिपोर्टर तापस चैटर्जी। बीते रात शनिवार उनकी तबियत बिगड़ने पर उनके पड़ोसियों ने महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सीएन टीवी चैनल दुर्गापुर के रिपोर्टर तापस बैनर्जी की कल रात तबियत बिगड़ने पर उन्हें पड़ोसियों ने महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया था। कुछ देर सब कुछ ठीक रहने के बाद हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। जहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तापस चैटर्जी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लेकिन वह मौत को मात देते हुए हम सबके बीच काम कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी तबियत में सुधार हो रहा था, पर शनिवार रात अचानक ही तबियत बिगड़ने से उनके पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। दुर्गापुर प्रेस क्लब की ओर से रविवार उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्षद तथा अधिवक्ता देवव्रतो साईं, पार्षद दीपांकर लाहा, स्वरूप मंडल सहित संवाद माध्यम के लोग मौजूद थे। उनके निधन पर पत्रकारों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। जानकारी मिली है कि उनके परिवार में माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। एक बहन थे जिसका विवाह हो गया है और वह अकेले ही घर में रहते थे। তারপর সুস্থ হয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর আবার আমরা সবাই আজকে তাপসকে হারিয়েছি। দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের সঙ্গে সঙ্গে এইখানে চলে ছবিটা পাবো আমাদের মাননীয় কাউন্সিলর তথা আইনজীবী সেলের অন্যতম একজন আমাদের অভিভাবক। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। रेल पर नहा मोहल्ला निवासी इफ्तिकार आलम की मौत पानी में डूबने से हो गई थी। उसका शव शनिवार काली पहाड़ी ब्रिज से बरामद किया गया था। रविवार जहां AIMIM पश्चिम बर्धमान जिला के सदस्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, तो वहीं कानून मंत्री मलय घटक भी उसके परिवार वालों से मिले और उन्हें सांत्वना भी दी। तो काम लगा हुआ था, बरसात आ गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन काफी है नदी के किनारे। ये डिपार्टमेंट को बहुत नदी का निकास नहीं है, तालाब में भी बंद करके बना दिया गया है। सब तो डिमांड से आप देखते हो ऐसे। बाकी आपका पुलिस विभाग तो शुरू से था हमारे साथ, दादा साहब थे और सीजल सुबह से थे हम लोग के साथ। ऐसा नहीं पुलिस का टीम था, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी रिलीफ में जो कार्रवाई होनी चाहिए 3.5 घंटे 4 घंटा लेट DRS इमरजेंसी का होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितना वेल डेवलप सिटी में इस तरह का हालात रहेगा, पाए तो मेरा चला ही गया, उसका नहीं है, लेकिन इस तरह का हालात दूसरे का साथ फेस में है, इसके लिए आप कीजिए। हम लोग बार बार आपको लाते हैं इसलिए कि आप डेवलपमेंट कीजिए, बस ऐसा है नहीं कि डेवलपमेंट बहुत खासा हो रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत है। खुद आपका ही एक पार्टी का आप एक ATM वाटर ATM ओके रोड में आप ही लोग उद्घाटन किए, जब कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ये सारा आप ही लोग बढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा सा रोकिए। बाकी तो मेरा भाई चल ही गया, लेकिन उसको वापस आएगा, लेकिन दूसरे के साथ ऐसा ना हो इसके लिए थोड़ा कीजिए। बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन खासकर विदाउट प्लान का इतना बिल्डिंग बना लिया है होटल के पास में। सब क्या है
देखिए मेन है कि नदी को एनक्रोच करके अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर नजर देनी है। ऐसे तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तुम देखने जाएगा तो खाली रेल पर में थोड़ी चारों तरफ में हाँ ठीक है, कहीं जो बना लिया उसको तुम तोड़ने जाएगा वो भी नहीं होगा। तो खासकर उसको प्रमोट नहीं किया जाए, तो बन गया अलग है, प्रमोट नहीं किया जाए कि आप बना लो तो ठीक नहीं, प्रमोट करना ठीक यहाँ नहीं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग की नजर में थोड़ी है। तो वो तो आप ठीक बता रहे हैं, हम तो आपको बताएं कि आपका पुलिस विभाग हमारे साथ था सुबह से रात, रात से सुबह, जब तक था मेरे साथ था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसको थोड़ा ध्यान दें। हम तो यही कह सकते हैं और ज़्यादा नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया ना, कैमरा बंद कर दिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। काजोड़ा एरिया क्षेत्र परासकोल कोयलरी के परासकोल डंगाल में शनिवार की रात एक पुरानी पानी की टंकी गिरकर ध्वस्त हो गई। टंकी गिरने के कारण पास के वाटर फिल्टर का एक दीवार भी गिर गया। काजोड़ा एरिया क्षेत्र के परासकोल कोयलरी के परासकोल डंगाल में शनिवार की रात एक पुरानी पानी की टंकी गिरकर ध्वस्त हो गई। टंकी गिरने के कारण पास के वाटर फिल्टर प्लांट का एक दीवार भी गिर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पानी टंकी काफी पुरानी थी एवं अत्यंत जर्जर अवस्था में थी। 2,22,000 गैलन क्षमता वाली इस टंकी के सहारे परासकोल डंगाल, परासकोल कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी आदि इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती थी। टंकी गिरने के कारण इलाके में जल संकट छा गया है। सूचना पाकर अंडाल थाने की पुलिस एवं ईसीएल के अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया। लोगों ने बताया कि इस टंकी के समीप एक सड़क गुजरती है जहां हर समय लोगों का आना जाना रहता है। साथ ही टंकी के बगल में फिल्टर प्लांट है, वहां हर समय ईसीएल के सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। बारिश के कारण कोई वहां मौजूद नहीं था, वरना यह एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने कहा कि टंकी की जर्जर अवस्था को देखते हुए कोयलरी प्रबंधन ने इस टंकी की समस्या कराने की बात कही थी। मरम्मत के अभाव में यह टंकी गिर गई। ये टंकी कब गिरा और कैसे गिरा? 7 बजे रात को। 7 बजे रात को। उस समय कोई यहाँ था क्या? ना, कोई नहीं। लगभग कितने पुरानी टंकी है ये? तो 45 साल बोल रहा है। और कितना लीटर का टंकी है? 2,50,000 लीटर। तो ये टंकी जब गिरा है तो किसी का क्षतिग्रस्त भी हुआ क्या? ना, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं पानी के लिए, जो हम लोग को जल्दी से व्यवस्था पानी के लिए, वही हम लोग चाह रहे हैं। मैनेजमेंट को खबर दिए हैं? मैनेजमेंट आ गया था, कल पुलिस आया था, सब कुछ ठीक है, लोग भी देख के किए हैं। हम लोग को पानी के लिए व्यवस्था की है। आपका नाम? आपका नाम? मागा बावरी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। रविवार बढ़ाकर हनुमान चढ़ाई के निकट विशेष और आधुनिक उपकरणों के साथ आशीर्वाद नर्सिंग होम का उद्घाटन डॉक्टर CS सिंह और विनीता तुलसिया ने फीता काटकर किया। फोटो हो गया, स्टिल हो गया, इसके बाद वीडियोग्राफी स्टार्ट करो। चलिए इसको उठो और जो भी सर्जरी है ठीक और ये लेबर रूम था, लेबर रूम सब आज ये जो नर्सिंग होम का यहाँ पर आप लोग खोले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे तो सर ने बताया है कि इसमें पहले सिर्फ गायनी ऑप्स का केसेस होते थे, लेकिन अभी जो खोले हैं कि सारे स्पेशलिटीज़ में रहेंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइजेज़ में, क्योंकि अभी जितने भी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेज़ में नहीं होते हैं और अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा सर्विस विद अफोर्डेबल प्राइजेज़ में हो। और ये यहाँ पर किस किस तरह का आप लोग इलाज कीजिएगा, क्या क्या ऑपरेशन होगा? सारे डिपार्टमेंट्स जो मेन है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, आई का स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें हर तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल है।
आईसीयू का भी अवेलेबल है क्या? ITU का अभी है, लेकिन ITU का है, सीरियस पेशेंट्स होंगे। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं से बाहर से भी यहाँ पर आएंगे? आसनसोल दुर्गापुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आकर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा के चाना मोड़ के निकट रविवार को श्रमिक संगठन CMS HMS के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अड्डा के चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी और CMC HMS महामंत्री सह JVCCI सदस्य SK पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। जामुड़िया विधानसभा के चांदा मोड़ के निकट रविवार को श्रमिक संगठन CMC HMS के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अड्डा के चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी और CMS HMS महामंत्री सह JVCCI सदस्य SK पांडे ने संयुक्त रूप में फीता काट कर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं अड्डा के चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी और CMS HMS महामंत्री सह JVCCI सदस्य SK पांडे को फूलों का गुलदस्ता और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर CMC HMS के महामंत्री सह JVCCI सदस्य SK पांडे ने नए CMC HMS के अध्यक्ष के रूप में उज्जवल चैटर्जी नाम की घोषणा की। इस उद्घाटन समारोह में सभी एरिया और कोलियरी के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित थे। इस उद्घाटन समारोह में अड्डा के चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री माले घटक के निर्देशानुसार मैं आज से CMC HMS अध्यक्ष पद में काम करता हूं एवं श्रमिक और संगठन के हित के लिए ECL हो या BCCL मैं हर समय कार्य करूंगा। वहीं दूसरी ओर कुल्टी के पूर्व विधायक सह अड्डा के उप चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी, कोलियरी मजदूर कांग्रेस के महामंत्री SK पांडे, संयुक्त महामंत्री प्रफुल्ल चैटर्जी, सांगठनिक सचिव सह जिला परिषद के विष्णुदेव नौनिया, सांगठनिक सचिव साहेब आलम, उपाध्यक्ष सफल सिन्हा, RP मंडल, नागेश्वर मोदी, सोहराब अली खान, मिंटू बैनर्जी, सुभाषिस मुखर्जी, खोकन मंडल, सुजीत रॉय चौधरी, चिंता हरण चैटर्जी सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।